Naveed bhai, good evening. Hello, Anshu. How are you? Can you see us? Yes, I can hear you and so wonderful to see you there. I know you're enjoying yourself in Rampur, immensely enjoying yourself. Yes. Uh, So this is yes, and lockdown is time to try out different experiments in cuisines on and different and contraptions. So that's what and I'm doing right now. so it must have been a very special Eid this time, being at home in the state and in your ancestral home. So, firstly, Eid Mubarak, and Thank you, so tell. Anshu. Eid Mubarak to you also and your family. Thank you. And tell us what was cooked on the what was part of the Eid feast this year. Okay. So first of all, let me introduce my chef, Mehfooz Qureshi. His That's father and his family has been cooking for the royal house for us for a long time. And second thing I want to show you is that I've got two preparations done specially, which were very popular in our household. Now, first was the bakre ke pasande, and the second is nargisi kofte. They are both the recipes are made by mutton. Also, I have the all the different masala. masala and ingredients which we use in preparing this. Wow. So, you can see it here. There's all the masalas are here, Right. and we've got it all here. Okay. So, So before I start discussing and helping all the home chefs uh, how to get these two beautiful dishes in on your table, I'd like to introduce Naveed Bhai, Nawab Sahab of Rampur. He is the current reigning Nawab of Rampur. He is a true custodian of his legacy. We all know that Rampur food has been celebrated across the globe. It's been made popular by many chefs, but if you eat even a bharta off his table, which I have done, it is so different, or a bangan for that matter. It is so different thank you, from what Ashwin. so different from what you would eat from, say, a Rampuri kitchen restaurant or even a seven-star luxury hotel. Because I think that cooking and enjoying food is in the blood of the Rampur family. So before we get on to the actual recipe, Naveed Bhai, we'd love you to tell us a little bit about your family and its tryst with cuisine and its love for food. Who was a great chef? Was it your grandmother? So tell us a little bit. So, actually, Rampur was, as a princely state, it was not really a very big princely state. It was a 15-gun salute state, which was kind of a medium-sized state. But Rampur was a very culturally very famous. So be it the cuisine, be it the music, be it the embroidery, be it the literature, arts, calligraphy, the the Nawabs had always patronized these things. And cuisine is something which is a legacy which even continues today. Of course, the authentic recipes which cannot be made today either for the simple reason the cooking medium has changed. Also, it was an acquired taste. The food was very rich and it suited the lifestyle of that era. Today, because of the different lifestyle, things have been modified along the years. So we try and maintain the originality of the cuisines and the recipes, but we cheat a little bit. That's also because that is what the people also enjoy today. It's very difficult for them to eat exactly the way it was cooked then, because the utensils were different, the ingredients which were used were very different, and the whole I think the metabolism of the people who used to eat the food was very different. That's So true. that all kind of affected it. Okay. So we have someone here who's saying now, Nawab Sahab, Hindi में भी बताइए. So would you like to say something in Hindi to one of our listeners? आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं हिंदी में भी बात करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो आप बताइए इस समय आपके घर में कौन असली में शेफ है amongst the family? तो ये है हमारे जो मेन खानसामा हैं, महफूज कुरैशी हैं,
और इन्होंने काफी घर पे तो ये हमारे खाना पकाते ही हैं, और हमारे जो रामपुर के इवेंट्स बाकी जो होते हैं और सब जगहों पे ये भी मेरे साथ जाते हैं, तो आप इनसे सवाल पूछ सकती हैं। जी जी। तो आज आपने क्या पकाया है, और आप पहले मसालों के बारे में बताइए, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल तो होगा कि मसाले कैसे मिलेंगे ये सारे। तो बताइए मसाले कौन से हैं और कैसे दिए जाएंगे। मतलब रेसिपी है ये यहीं के इसी घर से, मतलब हमें मिलते हैं ये खाने जो कि तैयार करते हैं हम। और हमने पसंदे बनाए मटन के, जो ग्रेवी में जो होते हैं कि पसंद है। एक तो वो होते हैं स्नैक स्टार्टर वाले, और एक ये ग्रेवी वाले हैं शोरबे वाले। एक शोरबे वाले पसंदे बनाए और एक नरगिसी कोफ्ते बनाए हैं। और इसके साथ में ये सारे हमारे स्पेशल मसाले हैं, उसके साथ हमारे साथ में ही है, तो हमने इसको भी टेबल पर रखा है। आप हर एक मसाले के बारे में बताइए, हर एक मसाले के बारे में बताइए प्लीज। जी जी जी। सबसे पहले तो हम ब्राउन ऑनियन करते हैं ऑयल में। क्या? जी जी, ब्राउन प्याज ऑनियन, भूनते हैं। हाँ प्याज। जी प्याज, प्याज को फ्राई करते हैं सबसे पहले। फिर उसके जी बाद जो है अदरक, लहसुन, जी प्याज जी उसका पेस्ट बना के पीस लेते हैं। जी। उसके बाद सारे उसमें मसाले आ जाते हैं। लाल मिर्च है, धनिया है, और हम्म। पीली मिर्च है। कुछ हमारे स्पेशल मसाले हैं घर के, जो हमारे घर पे ही बनते हैं। जी। इमाम दस्ते हैं, हम उस पे सिल पत्थर पे जो पीस के बनाते हैं। तो ये तो क्या, ये इनमें मसाला क्या है। क्या होता है, इन खास मसालों में क्या क्या चीजें होती है? इसमें जो हमारे पास जो स्पेशल मसाले जो बनते हैं उसमें ये है, एक तो ये दाल चीनी जवित्री, जी और ये लकड़ी है जो है ये इसकी दाल चीनी की। और जी ये इसको बहुत से लोग ये करते हैं कि पहले पीस के रख लेते हैं, और इसकी सारी स्मेल जो खुशबू होती है वो सारी उड़ जाती है। जी तो जी। हम जो हाथ के हाथ बनाते हैं, हाथ के हाथ तैयार करते हैं ताकि इसमें खुशबू रहे। तो ये आप सिलबट्टे पे और करते हैं कि पीसते हैं कि कैसे करते हैं? ये इमाम दस्ते में या सिल पे पीसा जाता है हमारे यहाँ मसाला, क्योंकि जी। मिक्सर में नहीं पीसते। मिक्सर में जो पीसने से सारी स्मेल जो उसकी खुशबू, वो सारे तो मसालों हम की खुशबू उड़ जाती है। और जितने सारे ये पहली मसाले हैं इस पत्थर के पिसे हुए हैं। सिल से या पत्थर से जो पहले मतलब तैयार हुआ करता था खाना, पत्थर से सिल से, वो मसाला है। और हमारे यहाँ सिल पे अदरक लहसुन भी सिल पे पीसा जाता है, मिक्सर में नहीं पीसते हैं। और तो अब आप इमाम दस्ते सोचिए में कि आप इस्तेमाल होता है। तो अब आप ये सोचिए कि आप किचन में हैं और आपके सामने आपकी डेगची है, और आप बताइए अब आपने नरगिसी कोफ्ते कैसे बनाए? नरगिसी कोफ्ते, बोलो जी बोलो जी। ना। तो पहले ये आपने इसको क्या हमने जो डाला? पहले इसको हमने जो इसका जो ये मटन जो है हमारा, हमने इसको बारीक महीन करके कूटा है, हाथ से कीमा बनाया है जी सबसे पहले। फिर जी इसका कीमा बनाने के बाद इसमें 1 से 1.5 घंटा कीमा बनने में लगता है। मशीन का जो कीमा होता है वो महीन हो जाता है। जी तो हमने ये हाथ से, अपने हाथ से कीमा करा है। इसको 1 दिन पहले करके रख देते हैं ताकि वो वाह। उसमें गलावट हो जाए। थोड़ा सा पपीता हल्का सा और नमक लगा कर रख देते हैं। दूसरे दिन तक वो जो है 12 घंटे में, 12-13 घंटे में तैयार हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है वो कीमा जो है। तो उसके दूसरे दिन जो उसमें मसाले लगते हैं कीमे में, हम लगाते हैं। इसमें गरम मसाला है, खुशबू मसाला है हमारे जो घर का है, गरम मसाला, खुशबू मसाला और तेजपात के पत्ता, अदरक लहसुन, इसको हम मिक्स करके इसमें लगा देते हैं। थोड़ा इसमें भुना बेसन रोस्टेड जो होता है वो लगा के इसको मिक्स करके इसका कोफ्ता फ्राई करते हैं। इसके अंदर अंडा भर के, जब अंडा भर के इसमें हल्का सा फ्राई करने के बाद इसको जो इसकी ग्रेवी हमने जो तैयार करी हुई है कच्चे ऑनियन से और ब्राउन प्याज से, अदरक जी लहसुन, ब्राउन ब्राउन ऑनियन, और जिसमें हमने जिसके अंदर अदरक और जी लहसुन। जी उसके बाद हमने ये गरम मसाला, लाल मिर्च, गरम मसाले के साथ लाल मिर्च, धनिया, यह है धनिया पिसा हुआ। उसके बाद हमने इसमें यह है खुशबू मसाला। ये सब इसको मिक्स करने के बाद जो हमारे प्याज का पेस्ट है उसमें डालने के बाद इसकी ग्रेवी भूनते हैं। जी। तो इसी तरीके से ग्रेवी भूनने के बाद जब तैयार हो जाती है फिर कोफ्ता उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये नहीं कोफ्ते इसके आप अंदर कीमा के साथ अंडे का डालते हैं, कीमे का, अंडे के आसपास कीमे का करते हैं, फिर इसको फ्राई भी नहीं करते हैं कि नहीं, सीधे करी में डाल देते हैं? अगर उसमें कच्चा डाल देते हैं तो कच्चा भी बन जाता है, लेकिन उसमें टूट जाता है वो। फिर इसलिए से हल्का सा अगर फ्राई करके तो उसको डाल देंगे तो उसका जो बना रहता है वो साथ। ठीक है।
और अगर उसको हम ऐसे कच्चा बनाएंगे तो कच्चा भी बन जाएगा, लेकिन ये हल्का फ्राई करने से उसके ऊपर जो खूबसूरती रहती है कोफ्ते के ऊपर, जी। अगर उसको कच्चा जी। जी, तो अब आपका इसके ऊपर कुछ गार्निशिंग भी करते हैं आप, प्याज की, जो भुने हुए प्याज की गार्निशिंग? गार्निश जो है हमारे यहाँ इसमें शाही दस्तरखान पे बहुत कम होती है, क्योंकि इसका खाने का जो दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है। गार्निश जो है सारे 5 स्टार होटलों में ही होती है। और इसकी गार्निश जो है धनिया, हमारे जो उसमें तार जो होता है शोरबा, उसकी खूबसूरती वो बढ़ाता है। तो इसकी बिल्कुल। गार्निश इसलिए करने की जरूरत नहीं रहती है कि क्रीम से या और तरीके से करी जाए। ये जी। सादा सिंपल खाना होता है। इसमें ये अपना नेचुरली दिखाता है कलर, जो भी जैसे सीख कबाब होगा वो अपने होंगे अलग तरीके के, और पसंद होगा तो ये अपना लुक दिखाएगा। ये साबुत अगर हम इस पे गार्निश कर देंगे तो वो चीज नहीं दिखेगी इसके अंदर जो हमने बनाई है। See, और it's very दूसरी important बात, because it's very important for everyone to understand that we all give so much of importance to garnishing and putting something on top yes, and loading it. yes. But here, And another thing, Anshu, another thing which is very typical of our food is that the original recipes were always cooked in ghee, never with oil. But because of the changing times and everything, now they've substituted ghee with oil. But I still feel, I personally, whenever हमारे घर पे जो खाना पकता है, वो घी में ही पकता है. Because there was an old saying that for your joints, for your joint pain, ghee was the best remedy. You know, घुटनों के दर्द में या और खूनी में दर्द हो रहा है, जो बोन्स का जो दर्द हो रहा है, उसके लिए घी is the best remedy. So that's why everything used to be cooked in ghee. And I personally even today prefer eating my food which is cooked in ghee. but the whole world is going back to ghee also. I mean, that's Maybe, but जो पुराने नुस्खे थे, they proved to be correct. You know, the people in those days, everything because of their lifestyles. And with ghee was something which always cured your knee joints or the bone, the pain which normally as you age, और जो दर्द होता है चाहे कोहनी में हो या anything related to bones, ghee was a very good remedy for it. So I always use ghee in my food. Wow. But Navid Bhai, Nawab Saab, tell us a little bit about your family. Who enjoys the Nargisi kofta the most, and who cooks it the best amongst the ladies? Was it an original recipe, or was it brought by one of the bahus? Well, see, in our family, men were always better cooks than women. My father always used to cook. My grandfather used to cook. As the ladies of the house, I think they don't really enjoy cooking that much because they probably feel it is उन्हें तो मजबूरी में खाना पकाना पड़ता है. But the men, because they are passionate about cooking, so they're very fond of cooking. So the men in our family, I mean, excluding me, I'm not a very good cook myself. But my father, my uncle, my grandfather, they all used to cook. Okay. So yeah, that is how it is. So tell me, a typical Rampur was known for its hospitality, the hounds, the music. Food was integral. So can you relive the memories? मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, I must tell you that जब दस्तखान होता था पैलेस में, in Khasbagh Palace, whenever there used to be, banquets or even a normal dinner we used to have, there was always music playing. No, we never ate our food in silence, there was always music. And depending on the time when the food was served, the rags of that time were played. And since my grandfather himself was he used to compose his own music, so he was very fond of it. So all the music, the interest and everything we had since childhood was because of him. And for instance, अगर नरगिसी कोफ्ते सर्व होते थे, तो राग भैर भी बजती थी. It was like that. So with every like जैसे मोट मुसल्लम अगर लगता था, तो राग भोपाली बजती थी. It was like that. So with every dish, I think, with every recipe,
there was a different rag. And again, if the food was cooked in the day, you were eating in the day, then the rags of the day used to be played. And if it was at night, then it used to be the rags of the night. It was like that. You also had your grandfather was the one who actually discovered Begum Akhtar and many other amazing musicians of that time. So, let me tell you, Begum Akhtar, who was renowned internationally, she was a musical figure. Her thumris and dadras originated from Rampur. That's right. And in fact, the blue solitaire which she used to wear in her nose was a gift from my grandfather to her, which she wore till the day she died. Then there was Bismillah Khan, there was Ustad Vilayat Ali Khan, and to top it all, Mirza Ghalib used to live in Rampur. Wow. His house is still here in the Rampur, in the city, before he moved to Delhi. So he was here. So, I mean, the Nawab were always patrons of art and culture. I mean, we have our own collection, our family collection of manuscripts, right from the 7th century in Arabic, Persian, Turkish, the old Turkish, Pashto, in Urdu, which are housed in one of my grandfather's palaces called the Hamid Manzil, and it's now part of the library's collection called the Rampur Raza Library, which was named after my grandfather, Nawab Raza Ali Khan, who was the last Nawab of Rampur. And in fact, he was a figure because Rampur state was the first princely state in undivided India to merge with the Indian Union in May 1949. We were the first. Wow. And in lieu of that, Pandit Nehru had sent Gandhiji's ashes to Rampur because we were the first state to merge, and they are still here. We have a Gandhi Samaj Rampur, where the father of the nation, his ashes are there. The only two places in the world, which is Rajghat in Delhi and in Rampur. Wow. Yeah, so everyone, next time you cross Rampur to go to Nainital or any other place, must drop by to see the Raza Library. It's a visual treat. Yes, you're most welcome to come to the Rampur Raza Library, and do let me know. I'm here most of the time. And we'll give you a very good tour, tell you all about the priceless collection which we have, which is housed in the Rampur Raza Library. And we maybe And in fact, the Raza Library also has over two dozen manuscripts which are on the royal Rampur cuisines. Wow. So we have manuscripts on the recipes of the cuisines, of the royal cuisines. Wow. That's amazing. So maybe at some point, Times of India, TOI Food, and you could collaborate and try and again relive that era of music meeting with food. That is so exciting. So maybe now for our home chefs, we should go back to recipe number 2 and go back to the chef, and again we should listen to how बताइए इसका नाम एक बारी फिर से, मेरे को पहले समझ नहीं आया। ये मटन की रेसिपी है। जी मटन पसंदा जी। इसको जो है चपटा करके बनाते हैं, बहुत गोल सारा बड़ा करके, क्योंकि एक रात में 4 से 5 ही पसंदे निकल पाते हैं। अगर हम इसको बड़ा बनाएंगे तो उससे ज्यादा नहीं निकल पाते हैं, और अगर बाकी जो होता है वो कीमे में चले जाता है। जैसे हमने नरगिसी कोफ्ता बना लिया उसका, क्योंकि रात में से पसंदे जो 4 से 5 ही निकल पाते हैं बड़े से। तो ये भी कीमा से ही बनते हैं? ये भी हाथ से? ये कीमा से नहीं होते हैं, ये बिल्कुल ऐसे साबुत होते हैं। एक मिनट दिखा दो। ये जैसे बड़ा सा ये हो गया, बड़े से गोल तरीके के। Oh, so actually it's flattened meat. ये है पसंद। वाओ। तो ये शुरू से बताइए कि आपने कैसे बनाया, क्या क्या मसाले डाले? सबसे पहले जो इसका मटन कटता है तो उसको हम पहले बारीक काट लेते हैं, क्योंकि एक दिन पहले इसको फ्रीज कर देते हैं ताकि जम जाए। जमने के बाद इसको जो है चॉपिंग बोर्ड पे महीन बारीक इसको काटते हैं, क्योंकि अगर वो हाथ के हाथ उसको अगर ताजा काटेंगे तो उसमें ताजे में बिखर जाता है, वो पसंद नहीं कट पाता है। तो उसको हम एक दिन पहले फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने के बाद जम जाता है, फिर उसके बारीक हमने गोल सारे काट लेते हैं जी। तो उसको उसी टाइम पे फिर हम गलावट लगाते हैं उसमें। जैसे कि गलावट में
पपीता लगा दिया थोड़ा सा उसमें, हल्की सी गलावट के लिए, और अदरक लहसुन का पेस्ट लगा दिया, थोड़ा सा जी सॉल्ट लगा देंगे, नमक लगा जी देंगे उसमें, फिर वो लगा के रख देते हैं। 2 से 3 घंटे रख देते हैं, फिर उसके बाद वो गल जाता है उसमें। फिर उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। ब्राउन ऑनियन करते हैं सबसे पहले हम जी इसमें। ये ब्राउन ऑनियन जो है, जूम कर। जी। ये ब्राउन ऑनियन बहुत जरूरी है, क्योंकि हर खाने के लिए घी को बनाना बहुत जरूरी है। हाँ अगर घी घी जैसे घी फ्राई करना है, या जी उसमें घी फ्राई करके, जब तक इसमें घी फ्राई कर ब्राउन ऑनियन नहीं हो पाएगा तो फिर उसका कचैल नहीं निकल पाएगी। हमारे जितने सारे खाने यहाँ पे बनते हैं, मैं बनाता हूँ, सारे खाने घी में बनते हैं। ऑयल में कोई खाना नहीं बनता है। अगर सरसों का तेल में घी बनता है, घी से ज्यादा ही बनता है, घर का होता है, क्योंकि यहाँ बना अच्छा घी होता है। तो ये देसी घी जिसको बोलते हैं जी। ये वही घी है ना, जो देसी घी बोलते हैं वही घी है। हाँ हाँ, असली घी भी अपना यहाँ का होता है, और ये डालडा घी भी होता है। वैसे तो हम यहाँ का यूज करते हैं, क्योंकि जी सारा खाना जितना है कि यहाँ के उसमें घी में बनता है। जी जी तो फिर हम उसके अंदर, जैसे 1 किलो मटन पसंद है हमने बनाना है, तो 1 किलो में हम 4 प्याज ले लेंगे, 4 प्याज को बारीक करके पीस लेंगे। जी और उसके बाद उसमें 1-2 स्पून जो है, 2 चम्मच बड़े वाले, जी 1 चम्मच जो है अदरक का, 1 चम्मच लहसुन, उसको भी हम उसको डालेंगे उसमें प्याज में, जो पीसी हुई प्याज होगी। जी। फिर उसके बाद उसमें हम डालेंगे ये, जूम कर। सारे मसाले। हाँ नहीं, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये तो हर जगह मिल जाता है। ये लाल मिर्च पाउडर है, जी ये धनिया पाउडर, ये है धनिया। जी इसको हाँ ग्रेट कर लिए, क्योंकि जो हाथ का हमारे जो यहाँ का जो धनिया है, ये हम खुद बनाते हैं अपना घर का। बाहर के धनिये में वो बात नहीं आ पाती है जो हमारे यहाँ के जी। धनिये में आती है। तो आप हाथ इसको हम से खुद पीसते बना हैं लेते हैं। इसको? इसको हम इससे सिल से पीस लेते हैं, इमाम दस्ते में पीस लेते हैं, खुद बनाते हैं अपना, क्योंकि हम बाहर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी 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 और ये हमारा सब मिक्स मसाला है, सब्ज मसाला इसको बोलते हैं। जी सारी सब्जियों के लिए हमने स्पेशल मसाला तैयार करके रखा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ बैगन तैयार करना है, और डिशें तैयार करनी है, तो हम इसमें ये इस्तेमाल करते हैं, सब्ज मसाला बोलते हैं। ये हमारे यहाँ यहीं पे होगा, ये शायद असर खान के नहीं है सिर्फ ये, बाकी ठीक है और जगह हम इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, ना हम कहीं लेके जाते हैं। ठीक है। और ये गरम मसाला है, ये गरम मसाला जो है, इसमें बड़ी इलायची है, लौंग है, ये तो सब जगह मिल जाती है। लेकिन जी ये भी हम अपना तैयार करते हैं, इसको पीस के बनाते हैं, क्योंकि हम अपना तैयार करने से उसकी खुशबू और स्मेल जो है खाने को जरा अच्छा रखती है। और ये जी इलायची है, ये भी जी इलायची हमारी अपनी खुद बनाते हैं। ठीक है। और ये पीली, ये है पीली मिर्च, रामपुरी पीली मिर्च। अरे वाह, यही तो मिर्च में असली मसाला है। जी जी जी। इसके कुछ लिए कहाँ मसाले जाना स्पेशल हैं। पड़ेगा? जी जी, ये स्पेशल मसाले हैं, क्योंकि हमें नहीं मिल पाते हैं, बाहर जाते हैं तो हम यहीं से लेके जाते हैं, बाहर सब तो जगह। हाँ, I must हाँ tell you that every time with Royal Favors Kitchen of the Kings, whenever we have done a beautiful dinner and Nawab Saab has been part of it, the one thing he always brings along is these mirchis. So, so I think Yes, it's the because magic. to have Rampur authentic food, you have to have the authentic chef along. You know, That's there right. shouldn't be too much of adulteration in the recipes. That's true. So That's true. that's why he has to accompany me wherever I go. Yeah, that's true. And we Yeah. tell you about the rest of the things. इसका बताओ। Yeah. ये स्टार फूल है, जी। स्टार Star फूल, anise. स्टार फूल। हाँ, ये इसको जो है सारे खुशबू मसाला बोलते हैं हमारे यहाँ, खुशबू मसाला। जी। इसमें हम चार चीजें डालते हैं इसमें। एक तो हमारी ये हो गई, और दूसरी दालचीनी। हमारी ये हो गई दालचीनी। जी। दालचीनी डाल देंगे इसमें। और एक ये जवित्री है, जवित्री भी जावित्री। अपनी हम हाँ खुद पीसते हैं। और ये बादयान है, बादयान जो आप, ये चारों मसाले मिक्स करने के बाद इसका हमने ये बना लिया, ये आ गया खुशबू मसाला। जी इसकी स्मेल इतनी हो जाती है जब ये हम पीसते हैं, पीसने के बाद जब हम किचन में, हमसे खड़ा नहीं हो जाता कि इतनी खुशबू आती है इसमें। उसका नाम ही इस वजह से हम खुशबू मसाला रखा गया। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे तो उन्होंने जी खुशबू मसाला, गरम मसाला, ये इस तरीके के नाम दिए, दादा परदादा ने सबने, तो ये नाम हमारे यहाँ चले आ रहे हैं यहाँ पे। और ज्यादातर ये है कि मसाले अपने ही होते हैं, बाहर का मसाला यूज नहीं करते, नई मसाला जी बनाते हैं। जैसे दाल मिर्च है, तो ये भी अपनी है हमारी, लाल मिर्च खुद तैयार करते हैं मसाले से पीस के। और ये धनिया, आपने जो धनिया, ये धनिया जो खाया था मैंने, ये धनिया वो है जो
सिल से पिसा हुआ है, इमाम दस्ते से पिसा हुआ है, तो उसकी खुशबू यही मसाले से चेंज हो जाते हैं। अगर ये मसाले अगर बाजार से लेंगे तो हमारा खाना इतना अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि खुद के जो तो मसाले आपने होते हैं अपने हाथ के तैयार हो रहे होते हैं, उनकी मसालों की बात हो होती है। और जितना है कि घर पे अगर हम लोग, हमारे घर में भी खाना बनता है तो सिर्फ सिल पत्थर इस्तेमाल होता है ज्यादातर, और जी उसमें इमाम जी। दस्ता होता है। तो अब मिक्सर आपने से सब मसाले मसालों में पीसते हैं। पहले क्या किया, पहले कैसे बनाया, आप बताइए। सबसे पहले हमने इसकी ग्रेवी तैयार करी, कच्चे प्याज पीसे 4, और उसके अंदर जो है प्याज पीसी, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और उसमें दही डाला, जी और उसके अंदर सारे मसाले जैसे कि लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, और गरम मसाला पाउडर है, खुशबू इलायची है, और ये हमारी मींग है, तरबूज की मींग हमारे खाने में डलती है। तो ओके हमने ये मिक्स करने के बाद इसकी ग्रेवी तैयार कर ली, और जो हमने कोफ्ता जो मटन का तैयार करा हुआ था, अंडा उसके अंदर भरने के बाद जो हमने उसको हल्का सा फ्राई करा है, और उसको हमने ग्रेवी में छोड़ दिया 3-4 जी। घंटे वो ग्रेवी रहता है। तो बट पकने के बाद उसका मसाला इसमें कोई जी स्टफिंग तो नहीं है ना, कोई पूछ रहे हैं कि आपके कोफ्ते में। स्टफिंग, नवाब साहब के यहाँ स्टफिंग जो है वो ड्राई फ्रूट की नहीं बना करते हैं, कि हमारे यहाँ मतलब ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे अंडा ही रहता है, या फिर उसके अंदर कहते हैं कुछ मत करो, स्टफ ड्राई फ्रूट का नहीं होता है, नहीं तो स्टफ हम जो है ड्राई फ्रूट का भी करते हैं बनाने में। जी तो यहाँ पे जो है नहीं बनता है ड्राई फ्रूट, नहीं जी। स्टफ कर सकते हैं। तो और गार्निश भी एवरीवन हम कैन, खाते हैं तो अच्छे से अच्छे करें, लेकिन यहाँ पे गार्निश जो है खुद खाने की होती है, क्योंकि ये तार है, जैसे तार आ रहा है, तो ये इसके अंदर हम हल्का सा, जैसे हमने ये मसाला डाल दिया, खुशबू मसाला, ओके और इसके अंदर जैसे और इलायची पाउडर, हाँ, जी तो इलायची पाउडर डाल दिया तो मसाले की गार्निश होती है, जो हमारे खुद के मसाले होते हैं तैयार करके, और हल्का सा वंडरफुल। उसमें धनिया का होता है या फिर अदरक का होता है, सो दूसरी गार्निश एवरीबॉडी नहीं हैज, होती। yeah, so everybody can now enjoy these two beautiful recipes at home. शुक्रिया, बहुत अच्छा। बट नावेद भाई, नवाब साहब, you have so many iconic recipes. And Anshu, next time you come past Rampur, you must come. And by the way, I'm going to taste some pasanda on your behalf Thank you. I and have see someone how saying I'm how already it's hungry. being made. Yeah, I'm going to Yeah, just you must tell us what the really taste is. tough. How many? Wonderful. Wow. Anshu, you have to come next time and have it. For sure. We all must do. I think It's lovely. It's I'm lovely. sure that you're great. I'm sure Times Food would love to do a little dinner with you. So we will invite everyone who's here to join us. But before we go, tell us the 3 amazing, like I've eaten the mutton ka halwa with you. Can you tell us 3 of the dhoka interesting recipes that you all have been making? Pardon? I can't hear you. 3 very, very interesting, like the mutton ka halwa that you make, the neem ka halwa. Oh yes, halwas. So we have like I think 2 or 3 dozen different types of halwas. You can have halwa of anything, pyaz ka halwa, mirchon ka halwa, which was there in one of your events as well. And neem ka halwa, neem ke patte ka halwa. Last time we had made that. Adrak ka halwa, ande ka halwa. I mean, the halwas of every vegetable. And machli ka halwa, fish halwa. Wow. But the good part is in all the halwas, you don't get like in the machli ka halwa, you don't smell the fish. Wow. In the ande ka halwa, you don't get that smell of the egg. And unless I tell you it's ande ka halwa, you won't even know you are having ande ka halwa. It's like that. Amazing. Great. So, somebody is requesting us to put the recipes online. Yes, I'll request Nawab Saab to do that. And also, if we could get the khushbu masala ka little bit of ingredients. But I would like to now end by thanking Nawab Saab and telling him Thank that you, Anshu. please It was use wonderful this for being yeah. on your show. Yes. And please use this time to enthrall the world. Yes, and I thank Times of India as well for having this opportunity to speak about, well, a couple of recipes, but we look forward to having many more sessions like this in the future. Thank you, and thank you to the chef as well, Adab and Shukriya. Okay, thank you, Anshu. Bye. Bye. See you.